Hello everyone, welcome to Gnandeep. In this UPSC Simplified series, we are going to understand answer writing approach for previous year questions which have been asked in UPSC mains exam. So in this particular part, we'll try understanding what should be the ideal answer for any question. When it comes to ideal answer, there is as such no ideal answer we can say, but at least we will try to understand what all we are supposed to write in any question, how to decode that question, because it is very important to understand question in the first place. If you want to write an answer, if you want to write a correct answer, the first requirement would be to understand that particular question. So we'll try to decode that question, and then we'll try figuring out what all components are required in any answer. We'll also understand what mistakes needs to be avoided, what all mistakes you are likely to do, and how you are supposed to avoid it. So here is one question. It is talking about delta formation by Indian rivers. So let us read question. Question is saying there is no formation of delta by rivers of the Western Ghats. Why? Okay. So first and foremost, it is very important to decode this particular question. So what this particular question is asking us. So when we decode the question, we'll implement this particular methodology. We'll try to identify the locus of the question. ठीक है. So locus हम लोग जब भी कहेंगे तो we are just talking about the context, right, or the reference in which this question has been asked. If you talk about this locus of the question, you can very well see in this particular part the locus of the question is formation of delta, right? Rivers, they are known to form deltas at their mouth, and there are various processes which are involved in the formation of delta. And in the same context, we have to focus on the part that why rivers which are originating from Western Ghats, right, and they are not forming delta. So that is something we are likely to focus, and that is something we are likely to answer in this particular question. So that is about the understanding question. So what this question demands, this question is demanding two things from you. One, how formation of delta takes place. Rather, you are not supposed to write too much on the formation of delta, but you are supposed to put this in mind. You are supposed to give the context to your question on formation of delta, and specifically you are supposed to focus on why Western Ghats river are not forming delta, or what all these rivers do when they meet oceans. Okay, so that is about the question. Now I'm just suggesting you what could be the ideal introduction, or what you can write in this particular question as introduction. Now there are various ways in which you can introduce. You can introduce with a definition, you can introduce with a fact. But अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे, एक आपका इंट्रोडक्शन का अगर आप डिफिनेशन का अप्रोच लेते हैं, if you try defining a question anything from this particular part, at best you can define deltas, right? So this is the part you can define. But my approach is, or generally what I suggest, do not define what is obvious, because whosoever is going to check your question paper, that person will be a professor who is in his late 40s or late 50s. He already knows a lot of things, and when you try defining very obvious thing right in the beginning of your question, that puts a bad impression. So उसको ये भी लगेगा ना कि like 40-50 years का बंदा है, और उसको आप कहेंगे कि डेल्टा क्या है. अगर आप उसको बताने जाएंगे कि डेल्टा क्या है, तो it may happen कि that guy would be offended, right? And that is why what I suggest, what I prefer is that avoid defining obvious things. ठीक है? So what else we are left with then? So we can put some facts in here. Now one fact I have, the fact is, you see, if you go to eastern coast of India or east flowing rivers of India, they form good number of deltas. Number of deltas आपको दिख जाएंगे, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, so on and so forth. These deltas are huge in their aerial extent. ठीक है? तो ईस्ट में तो बहुत अच्छे से डेल्टा का फॉर्मेशन हो रहा है. But if we go on west coast of India, what we find? We find that western coast rivers, or rivers which are emerging from Western Ghats, they are known to form a landform called as estuary. So this is a simple fact I have put in my introduction, saying कि see, जो ईस्ट में जा रही है रिवर्स या ईस्ट कोस्ट है, वहां पर डेल्टा का फॉर्मेशन हो रहा है,
और जो वेस्टर्न घाट से फ्लो होके वेस्ट कोस्ट में रिवर्स जा रही है, दे आर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ एस्चुरीज, राइट? So I hope you are aware of these particular landforms, be it delta or be it estuaries. Now that is what my introduction looks like. ठीक है, तो बहुत एक simple fact based introduction मैंने यहाँ पर choose किया है. Now then I will move on to body. So in body, what mistake you are likely to do? So the fundamental mistake you may do is that you will directly answer why rivers from Western Ghats are not फॉर्मिंग डेल्टास. सो दिस इज समथिंग यू आर गोइंग टू एरर ऑन, और यहीं पर कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी. तो मिस्टेक क्या है आप ये तो बताएंगे, यू विल टेल कि ये वेस्टर्न घाट की जो रिवर्स है व्हाई दे आर नॉट फॉर्मिंग डेल्टा, राइट? यू विल एलैबोरेट ऑन दैट. बट एक बेसिक प्रीमाइस यहां पर यही भी होगा कि आप ये डिफाइन करें, और यू आर लाइकली टू डिफाइन हाउ दिस डेल्टास आर फॉर्म्ड. यू आर नॉट सपोज टू एलैबोरेट मच ऑन दिस, ठीक है? इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, किसी ने आपको ये डायरेक्टली पूछा भी नहीं है कि ये डेल्टा कैसे फॉर्म होते हैं, बट टू गिव योर क्वेश्चन अ कंटेक्स्ट, क्योंकि आपका कंटेक्स्ट क्या था? फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा. सो व्हाट आई विल डू, आई विल आइडेंटिफाई फर्स्ट पार्ट ऑफ माय क्वेश्चन. मेरे क्वेश्चन के पहले पार्ट में क्या होगा? आई विल आंसर कि ये डेल्टा की फॉर्मेशन कैसे होती है. बहुत बेसिक वर्ड्स में या बहुत 2-3 लाइन में मैं उसको प्रेजेंट करूंगा कि सी व्हेन rivers meet ocean or at the mouth of the river, the gradient of river is very low, क्योंकि स्लोप बहुत कम होता है तो रिवर की स्पीड जो है स्पीड भी कम हो गई है. एट द सेम टाइम सेडिमेंट है, तो जैसे ही रिवर की वाटर की स्पीड कम हो जाएगी सेडिमेंट्स का डिपोजिशन शुरू होगा, और एक्सटेंसिव डिपोजिशन होके व्हाट वी विल हैव फॉर्मेशन ऑफ डेल्टास. नाउ यू हैव गिवन अ फ्रेम टू योर आंसर, क्योंकि अगर ये फ्रेम नहीं होगा, ये नहीं बताएंगे कि डेल्टा का फॉर्मेशन कैसे होगा, दिस क्वेश्चन और दिस आंसर विल जंप डायरेक्टली, कि आप डायरेक्टली इंट्रोडक्शन से मेजर या मेन कंटेंट जो है उस पे आप जंप कर जाएंगे. सो माय अप्रोच इज आई विल जस्ट इन 2-3 लाइंस इन 20 और 25 वर्ड्स मैं एक कंटेक्स्ट प्रेजेंट करूंगा कि ठीक है, देखिए डेल्टा की जो फॉर्मेशन है ये ऐसे ऐसे होती है, ठीक है? तो मैंने एक कंटेक्स्ट दे दिया. Now I will move on to the next part of my question, and now I will directly answer कि ये वेस्टर्न घाट की जो रिवर्स है why they are not forming delta. So let us try answering this particular part. तो expected है कि at least 5 to 8 points आप मेन बॉडी में लिखें, ठीक है? मेरे बॉडी के मैंने 2 पार्ट किए थे, जिसमें मैंने पहले पार्ट में हार्डली 20-25 वर्ड्स लिए, ठीक है? दूसरे पार्ट में मैं थोड़ा सा लिबरल होके कंटेंट यहां पर प्रेजेंट करूंगा. तो आई विल राइट सम 5 to 8 पॉइंट्स. नाउ इन 5 to 8 पॉइंट्स, सो दिस पर्टिकुलर सेशन इज नॉट अबाउट डिस्कसिंग द कंटेंट. हमें यहां पे कंटेंट नहीं डिस्कस करना है. व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द अप्रोच ऑफ आंसर राइटिंग, राइट? सो इफ यू लुक एट दिस अप्रोच, कि मैंने पार्ट 1 में एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी, अब पार्ट 2 में मैं सारा जो बॉडी का कंटेंट है वो प्रेजेंट करूंगा. व्हाट आई एम सेइंग कि सी यहां पर स्टीप टेरेन है, ठीक है? रगेड स्लोप्स है, फाइन. सो स्टीप टेरेन और रगेड स्लोप्स का इंपैक्ट क्या होगा? देयर इज लिटिल स्पेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा. देन अगर आप रिवर का कोर्स देखें, ये जितनी भी वेस्टर्न घाट से रिवर आ रही हैं, ऑल द रिवर्स हैव अ वेरी शॉर्ट कोर्स, राइट? सो दे मे बी एक्सटेंडिंग फ्रॉम लेट्स से 50, 80 और एट मैक्स 100 किलोमीटर. बहुत रेयर आपको रिवर्स दिखेगी वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होके वेस्ट में जाने वाली, कि जिनकी लेंथ जो है ये 100 किलोमीटर से ज्यादा है. नेक्स्ट, जैसे कि हमने पहले ही कहा था, डेल्टा के फॉर्मेशन के लिए जो वाटर की स्पीड होनी चाहिए, रिवर वाटर की स्पीड होनी चाहिए, इट शुड बी स्लो, राइट? बट व्हाट हैपेंस इन दिस पर्टिकुलर केस, वेस्टर्न घाट से जैसे ही अरेबियन सी में रिवर ड्रेन हो रही है, इट विल हैव अ फास्ट करंट, ठीक है? और अगर फास्ट करंट होगा तो देयर विल बी नो डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट. फर्दर सेडिमेंट लोड भी होना चाहिए. ऑलरेडी वी हैव सेड कि रिवर वाटर होगा, उसमें सेडिमेंट होगा, रिवर वाटर स्लो डाउन होगा, एंड देन दैट सेडिमेंट विल बी डिपॉजिटेड. बट इन दिस पर्टिकुलर केस, सिंस रिवर का कोर्स शॉर्ट है, ठीक है, बहुत स्पीड से पानी फ्लो हो रहा है, एट द सेम टाइम दिस पर्टिकुलर वाटर इज फ्लोइंग ऑन टू अ बेसोल्टिक रॉक. अगर आप यहाँ की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देखें, इफ यू लुक एट द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हियर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इज व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ बेसॉल्ट which is less prone to erosion. और बेसॉल्ट का इरोजन नहीं हो रहा है, so ultimately what will happen? There is less sediment load.
और सेडिमेंट नहीं हो तो अगेन डेल्टा की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। सो वी ऑलरेडी हैव इलैबोरेटेड दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि किस प्रकार से ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है या जियोलॉजिकल फैक्टर्स है, एंशिएंट रॉक्स है, उन कारण से लोड, सेडिमेंट लोड यहां पर नहीं होगा, so on and so forth. So that is something we have made here. ठीक है, so all these points इस पे आप थोड़ा सा elaborate करेंगे तो क्या हो जाएगा, let's take a word count. I will write some 20-25 words here. ठीक है, यहाँ पर भी मैं कुछ 20-25 words लिखूंगा, so 50 words something I have written. So maybe in 75 or 80 words I'll complete this part, right? Body का जो मेरा major part है, I'll complete this particular part in 80 words or so. So since I have completed this particular part, moving on to next part, अब क्या करना है, ठीक है, और क्या नहीं करना है। तो एक मिस्टेक हमेशा आपसे ये होगी कि you'll forget to draw a map or a diagram. Now take it as a thumb rule. जियोग्राफी का कोई भी क्वेश्चन होगा, please draw a diagram or draw a map. You can have both, but you cannot afford to have none. ठीक है, तो ऐसा कोई आंसर नहीं होगा जिसमें मैप या डायग्राम नहीं है। ऐसा आंसर हो सकता है कि जिसमें मैप भी है, डायग्राम भी है, राइट, बट डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ अ डायग्राम और अ मैप। जियोग्राफी में मार्क्स कई बार इसके भी मिल जाते हैं या इसके भी मिलते हैं, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल चूज अ मैप, लाइक आई हैव शोन मैप ऑफ इंडिया, एंड ऑन मैप ऑफ इंडिया आई विल शो वेस्टर्न घाट्स हियर, आई विल शो सम वेस्ट फ्लोइंग रिवर व्हिच आर emerging out of western ghats, and then I'll also show some east flowing rivers like Krishna, Godavari, Kaveri, Ganga and Brahmaputra, and I'll show कि see there is formation of delta, and in this particular part there is no formation of delta or there is a formation of estuary. So that is something I'll present on the map as well, ठीक है। Already हमने highlight किया था, right, but additionally what we are going to do, we will present this particular part on map. Lastly we will conclude. Now आपका कंक्लूजन जो है ये थोड़ा सा ये कहा जाता है कि ये फ्यूचरिस्टिक होता है, ठीक है। अब हर जगह पे जनरली आपके जो GS2 GS3 के क्वेश्चंस होंगे उसमें आप फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन दे सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू जियोग्राफिक क्वेश्चंस, इन जियोग्राफिक क्वेश्चंस यू कैन नॉट रियली हैव फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन। देन व्हाट विल हैपन इफ यू आर राइटिंग एनीथिंग फ्रॉम फिजिकल जियोग्राफी पार्ट, जैसे कि मैं यहाँ पे फिजिकल जियोग्राफी का क्वेश्चन कर रहा हूँ, आई कैन हैव अ कंक्लूजन ऑन द सिग्निफिकेंस इन ह्यूमन जियोग्राफी पार्ट, ठीक है। तो ये फिजिकल जियोग्राफी का जो भी ह्यूमन जियोग्राफी में सिग्निफिकेंस हो सकता है, दैट इज समथिंग आई विल प्रेजेंट हियर। नाउ सी व्हाट आई एम सेइंग इन माय कंक्लूजन, आई एम सेइंग कि सी लैक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा की फॉर्मेशन यहां पर नहीं हो रही है, उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, उसका अल्टीमेट रिजल्ट है देयर इज डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल हार्बर। सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव connected my physical geography part with human geography part, ठीक है। तो कंक्लूजन जो होगा वो हमेशा जियोग्राफी में कंक्लूजन ऐसे ही होगा, ठीक है। फिजिकल जियोग्राफी हमेशा आप कनेक्ट कर सकते हैं इकोनॉमिक या ह्यूमन जियोग्राफी के साथ, एंड दैट वुड बी योर बेस्ट ऑफ द कंक्लूजन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि ये आपके नेचुरल हार्बर्स फॉर्म करेंगे। एडिशनली मैं ये भी कह सकता हूँ कि इस प्रकार की कंडीशन इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय आंसर। नाउ लेट्स टेक अ वर्ड काउंट वंस अगेन। सो व्हाट आई विल डू, आई डिड राइट सम 20-25 वर्ड्स हियर। अगेन पार्ट 1 में मैंने कुछ 20-25 वर्ड्स यूज किए, यहाँ पर मैंने 80 के करीब वर्ड्स यूज किए। सो व्हाट आई एम डूइंग, सम लेट्स से हायर साइड, लेट्स गो ऑन हायर साइड, 25 50 plus 80, this would be my 130 word count, and फाइनली मैप का आपका वर्ड काउंट वैसे भी नहीं होगा। कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन इज समथिंग आई विल राइट इन 20 to 30 वर्ड्स। सो इन ऑल आई कैन कंप्लीट माय आंसर इन 150 वर्ड्स। सो 150 वर्ड्स के लिए ये क्वेश्चन जनरली आपको पूछा जाएगा। सो दैट इज हाउ you can write an answer. So that was UPSC simplified series for you. We'll see you again in next question. Good day.